Assalamu alaikum everyone. This is Hashim Barak. Welcome to the third meeting on cloud technologies. I'll be your host for the day. We previously had two special interest group sessions in the last 2 months on cloud technologies. We have had a session on IBM Cloud where we introduced the audience to IBM Cloud's interface and how to deploy high-level applications. We also had a session from our today's presenter, Dr. Muhammad Usman Awais, previously on AWS Educate, where Dr. Usman shared about the benefits that are available to academia under AWS Educate initiative. We wanted to take it a step further within Amazon domain. In today's session, Dr. Usman will be sharing high-level drag and drop aspects of AWS and how you can leverage those functions in your, FIPs or other projects. Uh, a quick set of housekeeping rules. We do have a general discussion session at the end of Dr. Usman's talk. So if you have any questions or queries, please use that session to participate with the audience. We'll also be going through a round of introductions in that session. For those of you who are joining us from the previous sessions, you'll see some repetitions, but it's important that we take all of the new faces along with us. With this, I'll quickly give a brief intro on why we established these special interest group sessions. So we, as SPS, a commercial enterprise that has been in business for 28 years now, we work on industry solutions. And in order to build an industry solution, you need expertise in various technologies, the likes of which artificial intelligence, IoT, cloud, cybersecurity. And these days, all of these technologies work very closely in an industry solution. We wanted to take these opportunities to the academia through this platform so that we work with academia very closely and we find those opportunities which will help us not just as a company but also the students and the faculty who are part of the academia. We believe this will help them enrich their skills, which at the end improve their job prospects, or if they are looking to build an idea and transform into a running enterprise. So with this, we are hoping to bring our country as a nation that is known for cloud skills globally. We see in our neighbors there is a huge technology sector. We believe we can also be one of the countries who are at the forefront of these technologies. So with this, I'll share the agenda. We'll have a few minutes for Dr. Arshad Ali, who is the president of Spin Labs. He is the former executive director of Higher Education Commission. He'll be sharing with you some high-level overview of academic outreach program. And then we'll hand it over to Dr. Usman Awais to give us an overview on AWS interface. And after that, we'll have the general discussion session. With this, Dr. Arshad, sir, you can please unmute yourself. Bismillah Rahman Rahim and Assalamu alaikum, everybody, especially Dr. Usman Awais. Thank you for joining. Uh, actually, the purpose of this special interest group, or for that matter, any special interest group, का मकसद ये होता है कि we make a community of interested people एंड डिस्कस कि हम किसी भी टेक्नोलॉजी के फोकस एरिया को लर्न कैसे कर सकते हैं और एक होता है कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं पीयर लर्निंग जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है और बिल्कुल इनफॉर्मल होती है. So this special interest group is a form of a peer learning क्योंकि after spending so much time in academia and technology, we feel कि ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस और उसके अलावा हम वैसे गप्पे लगाने के लिए तो बहुत सारा टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन सीखने के लिए और ऐसी टेक्नोलॉजीज को सीखने के लिए कि जो फ्यूचर में हमारे यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, वी नीड टू कम टुगेदर और एंड दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस. इवन कोर्सेरा के
स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप है, ओडेसिटी है, बाकी क्या है। और मैं देखता हूँ कि इंडिया में बहुत फोकस तरीके से और बहुत रेगुलरली ये सारे इवेंट्स होते हैं। जबकि पाकिस्तान में आई डू नॉट नो, बल्कि आज हम इसको डिस्कस भी मेरा ख्याल है कर रहे हैं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में लोग सीखने में और अपनी प्रोफेशनल एक्सलेंस को बढ़ाने में क्यों नहीं टाइम लगाते हैं, और इसका तरीका क्या होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे को गाइड नहीं करेंगे, और स्पेशली इसमें इन फोरम में फैकल्टी मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन का मकसद भी यही है कि हाउ कैन वी मेक अ बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट। तो इस मकसद के लिए ये हमारे स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप क्रिएट किए गए हैं। एंड आई एम श्योर इसमें से कुछ लोग बहुत रेगुलरली ज्वाइन भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। और हम इसमें सजेशन भी चाहेंगे कि इन फोकस ग्रुप को और मीनिंगफुल कैसे बनाया जा सके। So that is the only thing I would say, and I wish good luck to Hashim for creating this environment, क्योंकि इसके लिए efforts भी चाहिए होती हैं, कोशिश भी चाहिए होती है। तो Hashim is the focal person providing this kind of support. So thank you very much. एक community के लिए you are making this contribution. Over to you again. Thank you so much, Dr. With this, we can move to the next agenda item. We have Dr. Osman Awais. Sir, you can unmute yourself and also share your screen. जी अस्सलाम वालेकुम Welcome. and thank you Hashim and Dr. Arshad and Haish Malik for inviting me to give a talk about AWS. I can see that there are a few students also here. So my talk was quite a flexible one. I wanted to share, let me share my screen first, or probably I should share the complete screen. So, so first of all, a little introduction of myself. I am an assistant professor at FAST, Lahore. My name is Mohammad Usman Awais, and I have been teaching here in FAST for almost five years. I have started my interest in cloud, in specifically in AWS, around 2 years back, and from then on I kept on investigating AWS, and my interest led me to explore many new areas. So today the purpose is to introduce some very simple services of AWS to the audience. As I talked to Hashim, we thought that probably we will have more of the audience who are not interested in programming, probably. So this is why I chose some services which are pretty easy to use, like you can use the drag drop things or configure a few components and then bind those components together to get something out of it. But as I see, there are some students in the audience. So I will be happy to share with them the programming aspect of AWS. For example, AWS Lambda, the advanced services like AWS Lambda, and how to use them using a cloud IDE like Cloud9 and API gateways, etc. Although I'm not that much prepared for it, but I will be happy to take their questions in that regard. So first of all, just for the sake of initiation, what is cloud? You all know cloud is leveraging IT into a next domain. क्लाउड का असल में मकसद ये है कि
आपका जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लोकल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मैनेज करने के लिए आपको बहुत सारे डिफरेंट रिसोर्सेज बाय करने पड़ते हैं। आपको हार्डवेयर रिसोर्सेज बाय करने पड़ते हैं, आपको ह्यूमन रिसोर्सेज बाय करने पड़ते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली अगर आप एक नया स्टार्टअप है, तो आप नहीं चाहेंगे कि आप शुरू में ही हार्डवेयर के ऊपर और हार्डवेयर की मैनेजमेंट के ऊपर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी जो है वो लगा दें, और अगर खुदा न खास्ता आपका स्टार्टअप जो है वो उस तरह कामयाब नहीं होता, तो ये जो आपने हार्डवेयर के ऊपर एक्सपेंसेस किए हैं, ये आपके लिए एक बर्डन क्रिएट हो जाएंगे, यानी आपको फिर इसको रीसेल करना पड़ेगा और दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। ऑन द अदर हैंड, अगर आप AWS की तरह का कोई पब्लिक क्लाउड यूज़ करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी जो भी सर्विसेज आप यूज़ करेंगे, आपको उतनी ही देर इसको पे करना है जितनी देर आप इसको यूज़ करेंगे। जैसे ही आप अपना अकाउंट अगर डिलीट कर देते हैं, आप उन सर्विसेज को डिलीट कर देते हैं, तो आपको उसकी कॉस्ट इनकर करना भी ख़त्म हो जाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग बड़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रही है। हर साल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जिसको हम कहते हैं, हर साल तकरीबन 15% ये मार्केट जो है वो ग्रो कर जाती है, ओनली इन US एंड यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी बात अगर हम करें। और अगर आप इंडिया और मलेशिया वगैरह और इस तरह की जो ये जो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक वाला इलाका है, इसको लेके आए, तो ग्रोथ इससे भी ज़्यादा है। क्लाउड की तरफ क्यों मूव कर रही हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि इलास्टिसिटी है इसके अंदर। आप बड़ी आसानी से अपनी वेब, फॉर एग्जांपल अगर आप एक वेबसाइट बनाते हैं, आप अगर ई-कॉमर्स की एक वेबसाइट बनाते हैं, तो इसको आपको एक इंस्टेंस से 10,000 इंस्टेंसेस में कन्वर्ट करने में चंद सेकंड्स लगेंगे। इस वजह से आपकी कॉस्ट बचती है, आपको बड़ी तेज़ी से आप इसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी चंद सर्विसेज ऐसी हैं जो रेडीमेड जिस तरह की सर्विसेज हैं, आप उनको जोड़ कर सिर्फ चंद एक सर्विसेज को आपस में कॉन्फ़िगर करके आप एक एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। इसकी एक्सेस ग्लोबली आपको मौजूद है। फिर AWS की जो टीम है वो कॉन्टीन्यूसली इनोवेशन में लगी हुई है। हर तकरीबन ये जो इनकी हर साल AWS री इन्वेंट होता है, इसमें उनके CTO बता रहे थे, सिर्फ जो ये सेज मेकर और ML के जो CTO हैं, वो बता रहे थे कि वो तकरीबन हर रोज़ 60 न्यू फीचर्स जो है वो ऐड करते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। तो इस वजह से आपको ये इनोवेशन बड़ी आसानी से अपने एक कंसोल के ऊपर मिल जाती है। अमेज़ॉन जो है वो इन तमाम सर्विसेज के लिहाज से सबसे ज़्यादा मैच्योर है, सबसे ज़्यादा पुराना है और सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो अब हम आते हैं अमेज़ॉन की वेब कंसोल के ऊपर। उम्मीद है कि आप ये देख सक रहे होंगे। मेरे सामने AWS की मैनेजमेंट कंसोल खुली है, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं उन लोगों के लिए जिनके पास अमेज़ॉन का अकाउंट नहीं है। तो ऑल दे नीड टू डू इज़ वो aws.amazon.com के ऊपर जाएं। यहाँ पर एक स्टूडेंट है, वो भी बात कर रहे थे। ठीक है, AWS एजुकेट भी एक ज़रिया है आपका अकाउंट क्रिएट करने का, लेकिन आजकल बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में फ्लरिश कर गया है, और वो बड़ी आसानी से आपको क्रेडिट कार्ड ऑफ़र कर देते हैं। तो अगर आप aws.amazon.com पर जाएं और गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पर क्लिक करें, उसके बाद आप अच्छा, क्योंकि मैंने क्योंकि लॉगिन किया हुआ है, तो लेट मी ओपन अप अ न्यू गेस्ट इंस्टेंस जिसमें मेरा लॉगिन अवेलेबल नहीं होगा। आप गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पर क्लिक करें, इसके बाद क्रिएट अ फ्री अकाउंट करें। यहाँ पर आपके पास ये 5 स्टेप्स हैं बड़े इजी, जिसमें आपने सिर्फ ईमेल एड्रेस, अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर, अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस और इस तरह की चीज़ें आपने मेंशन करनी है, और आपका एक फ्री अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है,
सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर मैं आपको ये दिखाऊं, सॉरी, कि आपके पास कौन कौन सी फ्री सर्विसेज अवेलेबल हैं अमेज़ॉन में। तो ये आपके पास एक इनकी कंसोल है जिसके ज़रिए आप फ़िल्टर आउट करके देख सकते हैं डिफरेंट सर्विसेज को जो आपको फ्रीली अवेलेबल हैं, जो ट्रायल वेरिएंट अवेलेबल है, जो फीचर्ड है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये ऑलवेज़ फ्री के ऊपर क्लिक करें तो आप ये देख सकते हैं कि ये 25 GB ऑफ स्टोरेज तक के लिए आपको, ये हमेशा के लिए आपकी फ्री सर्विस है डायनामो DB को यूज़ करते हुए। इसी तरह लैम्डा सर्विस, ये जो आपका सर्वरलेस आर्किटेक्चर की बैकबोन है लैम्डा, इसकी 1 मिलियन कॉल्स जो हैं पर मंथ आपको हमेशा के लिए फ्री मिलेंगी। इसी तरह आपके पास ये SNS सर्विस है जो कि मैसेजिंग की सर्विस है, मोबाइल मैसेजिंग की सर्विस, इसकी 1 मिलियन मैसेजेस जो हैं वो आपके लिए फ्री है। इसी तरह आपके पास अमेज़न चाइम है, बहुत सारी सर्विसेज हैं। आप लिस्ट बहुत तवील है, मैं अगर इसके अंदर जाऊंगा तो हमारा बहुत सारा टाइम लग जाएगा, लेकिन बताने का मकसद ये था कि ये सिर्फ ऑलवेज फ्री सर्विसेज हैं। यानी अगर आप अपना सिर्फ क्रेडिट कार्ड डाल देते हैं, वो इसमें से $1 माइनस करेंगे और वो $1 भी उसके अंदर वापस आ जाएगा, लेकिन वो सिर्फ वेरीफाई करने के लिए $1 उसमें से माइनस करेंगे और उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो रनिंग हालत में आ जाएगा। और आप अपने जो बैलेंस है क्रेडिट कार्ड के अंदर कुछ डाले बगैर भी ये जो ऑलवेज फ्री सर्विसेज हैं इनको यूज़ करके एक ठीक ठाक एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं और अपने कम अज़ कम ये जो FYP और मास्टर थीसिस हैं वो बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें इसको बंद करते हैं और मैं आपको चंद एक सर्विसेज के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अमेज़ॉन ने जो सर्विस ऑफ़र की वो थी EC2 की सर्विस। EC2 की सर्विस का मकसद है, ये मैंने यहाँ पर ओपन की हुई है, चले मैं इसको दोबारा से शुरू कर देता हूँ। EC2 की सर्विस जो है असल में क्लाउड की आपके पास 3 लेयर्स हैं। सबसे पहली लेयर है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, उसके ऊपर लेयर है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और उसके ऊपर लेयर है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का मकसद है कि आपको वर्चुअली पूरी की पूरी मशीन अवेलेबल करवाई जाए, यानी आप उस मशीन के ऊपर अपनी मर्ज़ी से जो चाहे इंस्टॉल कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं, वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हैं, इवन अगर आप चाहें तो एंड्रॉयड स्टूडियो उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं, यूनिटी इंस्टॉल कर सकते हैं, गेम डेवलपमेंट उसके ऊपर कर सकते हैं, आप जो चाहें उसके ऊपर कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज से ऊपर वाली लेयर है, इसमें आपके पास उतनी ज़्यादा लिबर्टी नहीं होती, यानी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ इंस्टॉल नहीं कर सकते, बल्कि आपको चंद एक प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट्स अवेलेबल करवा दिए जाते हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। आप इन फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, अपनी वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ प्लेटफॉर्म एज सर्विस चीज़ें ऐसे भी हैं, जैसे MIT की एक सर्विस है, ओपन है वो, जिसमें आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो सर्विस किस चीज़ के लिए बनी है, वो वेब डेवलपमेंट के लिए बनी है, वो गेम डेवलपमेंट के लिए बनी है, वो मोबाइल डेवलपमेंट के लिए बनी है। जिस भी चीज़ के लिए वो चीज़ बनी है उस के लिए सिर्फ आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उसकी एग्जांपल्स AWS में भी आपको कई सारी मिल जाएंगी जो मैं आपको दिखाऊंगा। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की जो सबसे कॉमन एग्जांपल है, यही जो हम माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ सॉफ्टवेयर एज सर्विस। ये हमें आपस में कनेक्ट करने का एक मैकेनिज़्म है, हम इससे सिर्फ वही काम ले सकते हैं जिसके लिए इसको बनाया गया है। इसी तरह इसका काउंटर पार्ट अमेज़ॉन में AWS चाइम है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसी तरह आपके पास गूगल डॉक्स है कि आप उसमें अपनी मर्ज़ी से डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, इसके अलावा आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये सबसे ऊपर वाली लेयर है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये जो आपके सामने इस वक्त कंसोल ओपन है EC2 की, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की सबसे बेसिक लेयर है। अमेज़ॉन ने सबसे पहले जो काम शुरू किया था अपना, वो यहीं से किया था। यानी इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह की है कि ये अमेज़ॉन क्योंकि एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट थी, तो साल के आखिर में क्रिसमस के
करीब इनकी वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता था, क्योंकि लोग गिफ्ट्स बाय कर रहे होते थे, और बाकी साल में कुछ एरिया ऐसा, कुछ मंथ्स ऐसे होते थे जब बिल्कुल भी लोग, बहुत ही कम लोग होते थे जो कुछ बाइंग या सेलिंग कर रहे होते थे। तो इन्होंने जब एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस इंफ्रास्ट्रक्चर को एज ए वर्चुअल मशीन रेंट किया जा सके। तो यहाँ से EC2 इंस्टेंस की बुनियाद पड़ी। ठीक है, EC2 इंस्टेंस क्या है? इसको यूज़ करके, इस सर्विस को यूज़ करके आप अपनी मर्जी से किसी भी फ्लेवर की मशीन क्लाउड के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, और उसका डेस्कटॉप आपको अपनी मशीन के ऊपर नज़र आएगा और आप उसको जैसे चाहे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक इंस्टेंस आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोग्रामर्स हैं वो पसंद करते हैं अमेज़ॉन लिनक्स के इमेज को या रेड हैट वगैरह को, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं तो मैं विंडोज़ ही को चूज़ करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ये आपके पास ऑप्शन आ रही है कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम तो चूज़ कर लिया, अब आप हार्डवेयर चूज़ करना चाहेंगे कि किस किस्म का हार्डवेयर आप चाहते हैं, आपकी ज़रूरियात किस हद तक हैं, आप कितने वर्चुअल CPUs चाहिए आपको, यानी क्लाउड के ऊपर जो CPUs पड़े हुए हैं उनको vCPUs कहते हैं। और इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है, आपको मेमोरी कितनी चाहिए, आपको इंटरनल स्टोरेज कितनी चाहिए, आपको नेटवर्क बैंडविड्थ कितनी चाहिए, आपको ये स्टोरेज एक्स्ट्रा स्टोरेज कितनी चाहिए, और ये स्पेशली ऑप्टिमाइज्ड स्टोरेज है, ये आपको चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो कितनी चाहिए। तो इसमें आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि शुरू में आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सिंपल किस्म की आपके पास ऑप्शन है। जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते चले जाएंगे आप देख सकते हैं कि आपके पास ये बड़े से बड़े मशीन्स आती चली जा रही हैं। इसके अंदर 36 CPUs हैं, 60 GB की रैम है, ठीक है, और 10 गीगाबिट ईथरनेट है। इसके अलावा यानी अगर मैं इसको पूरा स्क्रॉल करूं, नीचे तक लेकर जाऊं, तो आपके पास ये जो है, ये Z1D जो मशीन है, ये असल में आपको टोटली एक मेटल जो है, यानी बेयर हार्डवेयर के ऊपर आपको AWS एक्सेस देता है। उस हार्डवेयर के ऊपर 48 कोर्स हैं, 384 GB मेमोरी है, 2 मॉड्यूल्स हैं 900 GB के SSD के, और इसकी जो स्पीड है वो 25 गीगाबाइट आपको इंटरनेट की और नेटवर्क की स्पीड आपको इस पर मिलेगी। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स ये बहुत एक्सपेंसिव हैं, और लेकिन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जो है ऑफ कोर्स इसको यूज़ करती हैं। तो हम एक बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल लेते हैं फ्री टियर में जो अवेलेबल है, और जिसको मैंने जैसा कि वादा किया था कि वो चीज़ें मैं यूज़ करूँगा जिसके ऊपर आपका बिल्कुल कोई ख़र्चा नहीं होगा। ठीक है, तो अगली स्क्रीन के ऊपर जाते हैं। अच्छा, यहाँ से आप डायरेक्टली लॉन्च भी कर सकते हैं इंस्टेंस को, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें मॉडिफाई करना चाहते हैं तो ज़रूर आप यहाँ पर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड आप अपना बना सकते हैं। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड आप ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से बनाएं, उसकी अलहदा से GUI भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको ये क्रिएट करते हुए याद आया कि आप अपना वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बनाना चाहते हैं, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जो है ये सिनोनिमस है आपके नेटवर्क के अंदर। जब आप एक सबनेट क्रिएट करते हैं तो आप ये चाह रहे होते हैं कि चंद एक मशीनें जो हैं आपकी, वो यानी अगर आपके पास 10 मशीन्स हैं तो उनमें से फॉर एग्जांपल आपकी जो 5 मशीन्स हैं वो एक काम करें और दूसरी 5 मशीन्स दूसरा काम करें, लेकिन कभी कभी ये दोनों ग्रुप्स जो हैं आपस में कम्युनिकेट भी कर लिया करें। तो ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड उसके लिए यूज़ किया जाता है। यानी आप फॉर एग्जांपल आपका अगर मशीन लर्निंग से रिलेटेड आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, तो चंद बड़ी बड़ी मशीन्स जिनके अंदर GPUs भी हैं, आपके पास हाई स्पीड स्टोरेज भी है, और आपके पास जो CPUs हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, और मेमोरी भी बड़ी ज़्यादा मिकदार में है, तो उनका आप एक अलहदा से वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बना कर रख दें जिसके अंदर सिर्फ डाटा क्रंचिंग होगी, और आपने जहां पर अपनी वेबसाइट को होस्ट करना है, आपने अपनी पूरी जो वेब सर्विस है या वेबसाइट है या अपनी जो प्रोडक्ट है उसको होस्ट करना है, उसके लिए आप सेपरेट से एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बना दें, और इनकी आपस में जो कम्युनिकेशन है वो गेटवे के थ्रू होती है। ठीक है, तो आप वो गेटवे भी बना सकते हैं।
इस गेटवे के पीछे आप लोड बैलेंसर भी लगा सकते हैं। लोड बैलेंसर का फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक वेबसाइट होस्ट की हुई है और आपने फॉर एग्जांपल 5 मशीन्स का इसी तरह का वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बनाया हुआ है, अब वो जो वेबसाइट का एड्रेस है वो तो एक नज़र आ रहा है और वो एड्रेस गेटवे एक्सपोज करेगा। और अगर आपने गेटवे के पीछे लोड बैलेंसर लगाया हुआ है तो लोड बैलेंसर क्या करेगा कि आपका जो पहली रिक्वेस्ट आती है उसको वर्चुअल मशीन नंबर 1 पर भेज देगा, दूसरी रिक्वेस्ट आती है उसको वर्चुअल मशीन नंबर 2 पर भेज देगा, तीसरी रिक्वेस्ट आती है उसको वर्चुअल मशीन नंबर 3 पर भेज देगा। इस तरीके से राउंड रॉबिन के तरीके से वो लोड बैलेंसिंग या लोड शेयरिंग करता है ऑटोमेटिकली। आपको उसके लिए कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, आपने सिर्फ ऑप्शन चूज करनी है लोड बैलेंसर की वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्रिएट करते हुए और ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। चलें, ये तो बातें मैं आपको यानी बरसर तज़किरा मैं आपको जिक्र करता चला जा रहा हूँ। तो वापस आते हैं अपने एक सिंपल वर्चुअल मशीन क्रिएट करने की तरफ। तो सिंपल वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हुए आपको कोई नया वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक डिफ़ॉल्ट में वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड हमेशा मौजूद होता है, उसके अंदर डिफ़ॉल्ट सबनेट्स भी होते हैं। आपको कुछ भी यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है फॉर द स्टार्टर्स, ठीक है। हाँ, अगर आप इसको पब्लिक आईपी इसको यानी कि इसकी पब्लिक विजिबिलिटी ऑन या ऑफ करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमने इसको एक्सेस करना है अपनी लोकल मशीन से, लिहाजा हम इसकी पब्लिक विजिबिलिटी इनेबल ही रखेंगे, ठीक है। वो जब आपने एक मशीन की सपोर्ट के लिए क्लाउड के ऊपर ही दूसरी मशीन को रखना होता है तो तब आप उसकी विजिबिलिटी डिसेबल कर देते हैं। स्पेसिफिकली यही जो मैंने आपको सिनारियो बताया वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के केस में, जब आप एक गेटवे बनाते हैं तो उसके पीछे चंद जो उस गेटवे के पीछे जो मशीन्स लगी होती हैं उनकी पब्लिक विजिबिलिटी नहीं होती, सिर्फ गेटवे नज़र आ रहा होता है, पीछे से जो पिछली जो मशीन्स हैं वो नज़र नहीं आ रही होती। तो ये चंद एक अगर आपने डायरेक्टरी सर्विसेज में लेकर जाना है, ये सारी एडवांस्ड ऑप्शंस हैं, अभी हम इसके अंदर नहीं जाते, ठीक है। इसके बाद है अगर आप इसकी स्टोरेज, अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आपको 30 GB स्टोरेज अवेलेबल है। इसकी मिकदार आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। आप इसके अंदर मज़ीद कोई वॉल्यूम ऐड करना चाहते हैं तो मज़ीद वॉल्यूम्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपने बताना है कि ये वॉल्यूम की टाइप क्या होगी, उसकी जो है उसका साइज़ क्या होगा एंड दैट्स इट, ठीक है। आप उसमें इंक्रिप्शन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, कोई की लगाना चाहते हैं, वो भी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अभी हम इसको डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के साथ, मैंने जैसे कि बताया कि मैं सिर्फ ये ऑप्शंस आपको दिखाना चाह रहा हूँ, अदरवाइज़ आप यहाँ से भी रिव्यू एंड लॉन्च कर सकते थे। टैग्स वगैरह आप तब ऐड करते हैं जब आपने टेंस ऑफ डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करनी है तो उनको फ़िल्टर आउट करने के लिए आप टैग क्रिएट कर देते हैं, उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी ग्रुप क्या करता है? ये सिक्योरिटी ग्रुप आप ये इस मशीन की पोर्ट को किस किस पोर्ट को ओपन करना है और किस किस पोर्ट को क्लोज रखना है, ये आप ये यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि चूंकि ये एक विंडोज़ की मशीन है और आपने इसको रिमोट डेस्कटॉप करना है, लिहाजा आपने RDP की जो पोर्ट है 3389 इसको ओपन रखा है। कस्टम 000 ये चीज़ ये बता रही है कि दुनिया की किसी भी कोने से इस मशीन को एक्सेस किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्पेसिफिक IP आपकी ही मशीन सिर्फ इस मशीन को एक्सेस कर सके तो आप यहाँ पर जाएं, आप अपना लिखें माई IP, ठीक है, माई पब्लिक IP, ये आपका IP है। आप इस IP को अगर इसमें डाल देंगे तो सिर्फ आप ही इस मशीन को एक्सेस कर सकते हैं, कोई और इस मशीन को एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन अभी हम इसमें भी नहीं जाते। तो ये आपके पास सारी ऑप्शंस आ गई। इसके बाद आप इसको रिव्यू एंड लॉन्च करेंगे, ठीक है, लॉन्च कर दिया। अच्छा, चूंकि मैंने पहले भी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट की हैं, लिहाजा यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक की मौजूद है, ठीक है।
की क्या चीज़ होती है? की असल में आपको सिक्योर हैंडशेक के लिए ज़रूरी है। जिस मशीन के ऊपर ये की पड़ी होगी, अगर वो मशीन इस वर्चुअल मशीन के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगी तो उसको पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो इसके लिए अगर आप नई क्रिएट करना चाहते हैं की, तो आप नई भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन नई क्रिएट करके आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन चूंकि मेरे पास एक की मौजूद है, मैं उसी को यूज़ करूँगा। ठीक है? इसके बाद आपने लॉन्च इंस्टेंस कर देना है। तो इन अ नटशेल अगर आप चाहते तो आप सिर्फ नेक्स्ट 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 करते हुए भी अपनी मशीन को लॉन्च कर सकते थे, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं था। ठीक है, लेकिन मैंने आपको दूसरी ऑप्शन बता दी जो स्टूडेंट्स इधर बैठे हैं, ताकि वो देख सकें कि कौन कौन सी आपके पास ऑप्शन है और उनका मकसद क्या है। तो ये चंद एक मशीन्स हैं। ये मेरे पास पहले से एक मशीन बनी हुई थी। ये मशीन मैंने आपके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बनाकर डिस्ट्रॉय की थी। ये मशीन जो है ये अभी रन नहीं हुई, ये भी पेंडिंग कंडीशन में है। इसको अभी रिसोर्सेज एलोकेट हो रहे हैं। जब रिसोर्सेज एलोकेट हो जाएंगे तो हम इसको एक्सेस कर सकेंगे। चंद एक सेकंड्स बाद ही ये इंशाल्लाह एक्सेसिबल होगी। अभी तक अगर ऑडियंस का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप ये देख सकते हैं कि अब ये इंस्टेंस मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता था, अगर आप इजाजत दें जी तो। जी जी जरूर। जी सलाम, अम्बारी जाफरी बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि पुराने ज़माने की, मैं चूंकि पुराने ज़माने का आदमी हूँ, पुराने ज़माने की बात करूंगा। पुराने ज़माने में वो एक स्टैंड बॉक्स का कॉन्सेप्ट होता था मेन मशीन के अंदर, जिसके अंदर कोई भी आपने काम करना था तो तब उसमें कर लेते थे, वो आउट नहीं होती थी। इसकी क्या श्योरिटी होगी क्लाउड के ऊपर? ज़ाहिर है जो हमें तो नहीं पता होगा कि जो आप ये अरेंजमेंट बता रहे हैं वर्चुअल मशीन्स का, ये सिक्योर रहेगा सारा। अच्छा, इसकी जो सिक्योरिटी है ये शेयर्ड सिक्योरिटी है, यानी आप AWS और जो क्लाइंट है उसके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बाकायदा। ठीक है, यानी मैं आप ये AWS इस तरह सर्च भी कर सकते हैं, सॉरी। ठीक है, कस्टमर एग्रीमेंट जिसको कहते हैं। ठीक है। तो ये इसमें इसमें अगर आप इसको तफसील से पढ़ें तो इसमें वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि वो किस किस चीज़ की गारंटी देते हैं सिक्योरिटी की, और कौन सी चीज़ है जिसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी क्लाइंट के ऊपर है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब आपने सिक्योरिटी का अगर क्वेश्चन किया तो एक आसान तरीका ये है, जैसे मैंने अभी आपको गेटवे का बता रहा था। आप एक ठीक है। छोटी, हाँ जी बिल्कुल, आप एक छोटी सी मशीन लें जिस तरह की मैंने एक बनाई हुई है, इसको आप गेटवे बना दें और इसके ऊपर आप फायरवॉल रन करनी शुरू कर दें। यानी आप ईच एंड एवरी पैकेट को स्निफ करके आगे जाने दें। जो आपका ठीक असल डाटा है, जिसको आप सैंडबॉक्स कह रहे हैं, जिसको यानी हम आप सिक्योर रखना चाह रहे हैं, वो आप दूसरी वर्चुअल मशीन पर रखें। तो होगा ये कि आपकी रिक्वेस्ट आएगी इस मशीन, छोटी मशीन के ऊपर, लेकिन ये अंडर द हुड ये उस रिक्वेस्ट को आपकी जो असल मशीन है उस तक फॉरवर्ड कर देगा, जिस तक दुनिया की कोई चीज नहीं पहुंच सकती। उस तक सिर्फ वही रिक्वेस्ट पहुंच सकती है जो इस मशीन के थ्रू आएगी। ठीक है, फिर आपके पास वो जितने सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, हनी बॉट्स हैं, फायरवॉल्स हैं, वो आप सारी की सारी AWS के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। जो अगर मैं आपकी बात समझ पाया हूँ जी तो, अगर मैं आपकी बात समझ तो जो थे ना पहले कॉन्सेप्ट डीमिटलाइज जोन्स का, कि भाई आपके डाटा आ गया, अब जिसको आपने सिक्योर करना है उसको DMT में कन्वर्ट, जोन में कन्वर्ट कर दें, जी और उधर उधर वही जाएगा जिसके लिए आप अलाउ करेंगे लेवल ऑफ एक्सेस के हवाले से। अच्छा, इसमें एक छोटा सा सवाल आपसे करूंगा कि फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी का CEO हूँ और मैं कहता हूँ कि अच्छा भाई, ये जो स्टाफ है ना, ये 6 बजे के बाद एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है जी, जी जी शाम 6 बजे के बाद। अब अगर कोई करता है तो सिक्योरिटी अलर्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इज इट पॉसिबल कि इसमें हम ये टाइम जोन्स वाइज ये कर सके, एक्सेस जी दे बिल्कुल। सके स्टाफ? ये ठीक है, इसके ठीक है, लिए Amazon वर्कस्पेस की सर्विस है। ठीक है। मैंने इसको पर्सनली ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि ऑफ कोर्स इसकी जो एप्लीकेशन है वो यानी वही सिनारियो जो आप बता रहे हैं उसके अंदर ही है, और मैं चूंकि किसी कंपनी का CEO नहीं हूं तो मैं इस एक्सरसाइज में से नहीं गुजरा, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा था।
ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप एग्जैक्टली यही कर सकते हैं कि आप यूजर्स और उनकी जो वर्चुअल मशीन्स हैं, उनकी एक्सेस, उनकी टाइमिंग, उनकी अप एंड डाउन टाइम, ये सारी चीज़ें आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है सर। तो ये मैं इसलिए पूछा था, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। इसलिए मैं किसी इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व था, तो मैंने क्वेश्चन किया उनके स्टाफ से कि ये रात 1 बजे एक्सेस हुई ये मशीन, तो जी क्या इनको इजाजत थी? तो उनके पास ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं था। तो उसने मुझे ये ख्याल है कि अगर स्टैंडर्ड होता, यस, सीईओ को इजाजत हो या सीटीओ को इजाजत हो या चीफ ऑपरेटिंग वो कर सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं कोई स्टाफ का बंदा कर ले। तो ये मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा इसका फीचर है इसका, उसके हवाले जी से। बहुत एग्जैक्टली। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। जी यू आर वेलकम। अच्छा, तो अब हम आते हैं इस इंस्टेंस की तरफ वापस। चूंकि ये एक विंडोज़ का इंस्टेंस है, हमें इसके लिए डेस्कटॉप इन्वायरमेंट चाहिए होगा, तो आप इसको सिलेक्ट करें, इसके बाद कनेक्ट के बटन पे क्लिक करें। चूंकि आपको इसके लिए RDP क्लाइंट चाहिए होगा, लिहाजा आप इसके ऊपर क्लिक करें। अब ये आपको दिखा रहा है क्योंकि आपने इस इंस्टेंस की सिक्योर शेल SSH की जो एक्सेस है वो तो इनेबल की नहीं, आपने इसको RDP के थ्रू ही एक्सेस करना है, लिहाजा आपको इसका पासवर्ड चाहिए होगा। पासवर्ड हासिल करने के लिए ये मेरे पास वो की पड़ी हुई है, मैं इसको वही की जो वहाँ से मैंने क्रिएट की थी इंस्टेंस क्रिएट करते हुए, ये वही की है, उसको मैं यहाँ पर पेस्ट करके इसको कहता हूँ डिक्रिप्ट पासवर्ड, और ये आपके पास पासवर्ड आ गया है। अब मैं ये सॉरी ये मेरे पास रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट है लिनक्स के अंदर, क्योंकि मैं लिनक्स का यूज़र हूँ और मुझे इसके लिए यहाँ पे अब मुझे डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल भी डाउनलोड करनी है इसकी। ठीक है, उस मेनली उसमें मुझे इसका ये एड्रेस चाहिए, तो मैंने इसको भी सेव कर लिया। अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। चलें यहाँ से ही ओपन कर लेते हैं। ये मेरे पास फाइल है, मैं इसको ओपन करता हूँ। एक आम यूटिलिटी से जो कि नोटपैड टाइप की यूटिलिटी है। इस एड्रेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये यूज़र नेम है, ये उस मशीन का एड्रेस है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद इधर KRDC में आता हूँ, यहाँ पे VNC की बजाय RDP सिलेक्ट करता हूँ। ये उसका एड्रेस है और इसका जो यूज़र है वो है एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये जनाब दिस इज़ इट। ठीक है, ये चंद एक मुझसे ऑप्शंस मांग रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलें मैं 800/600 की रेजोल्यूशन कर लेता हूँ ताकि नज़र आए। अच्छा, यहाँ पर आप वो मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड मुझे कहाँ से मिलेगा? ये जो मैंने पासवर्ड डिक्रिप्ट किया था, यहाँ से ये बटन दबाकर भी मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और अब ये चंद सेकंड्स लेगा मशीन को इनिशियलाइज करने के लिए, मेरा डेस्कटॉप प्रिपेयर करने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि वो मेरा डेस्कटॉप प्रिपेयर कर रही है मशीन। अब ये मशीन AWS में प्रोबेबली ये ओहायो का जो मैंने ये डाटा सेंटर सेलेक्ट किया हुआ है, ओहायो के डाटा सेंटर के ऊपर चल रही है, लेकिन मैं रिमोट डेस्कटॉप के ज़रिए उसको यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। बिल्कुल एक आम विंडोज़ की मशीन है, इसमें आप जो चाहें इंस्टॉल करें, अनइंस्टॉल करें, जो चाहे करें। इसमें आप इवन अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी है, क्योंकि मेरी इंटरनेट की स्पीड कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इस वजह से आपको ये थोड़ा सा रुक के नज़र आ रहा है इसका डेस्कटॉप। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है तो इवन आप इसके ऊपर गेम्स भी खेल सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए आपको जो मशीन चाहिए होगी वो ज़्यादा अच्छी चाहिए होगी। इसको आप यहाँ से ही जो भी आप करना चाहें आप इसको, अगर हम इसको शट डाउन करें ताकि हम दूसरी सर्विसेज को देख सकें, तो ये मशीन शट डाउन हो जाएगी और हम इधर अगर आकर देखेंगे तो आपको कोई भी इंस्टेंस रनिंग नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो इंस्टेंस जो अभी मैंने क्रिएट किया था वो शट डाउन हो चुका है।
विद इन लेस देन अ मिनट, यानी कि चंद सेकंड्स के अंदर वो शट डाउन हो गया है। तो अगर मैं इसको स्टॉप की बजाय टर्मिनेट करना चाहता हूँ तो मैं टर्मिनेट भी कर सकता हूँ, ताकि मुझे इसकी बिलिंग ना पड़े। तो यानी ये एक बिल्कुल सिंपल और सादा सी एक सर्विस है, जिसकी ज़रूरत शायद तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में, हर ऑफिस में है। क्योंकि अगर आपके पास एक नया एम्प्लॉई आया है, तो बजाय ये कि आप उसके लिए एक बड़ा सा सर्वर खरीदें, आपके पास अगर कोई पुरानी मशीन भी है जिसका मॉनिटर काम करता है, जिसका माउस काम करता है, जिसका कीबोर्ड काम करता है, आप उसको एक मशीन जिसकी उसको ज़रूरत है, जितनी भी हाई एंड की उसको मशीन चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको यहाँ पर बना कर दे सकते हैं और वो उसके ऊपर अपना काम शुरू कर सकता है। अच्छा, इसके बाद मैं कुछ और इजी टू यूज़ सर्विसेज की तरफ जाना चाहूँगा। जैसे आपके पास ये एक सर्विस है अमेज़ॉन रिकग्निशन। तो मैं ये बाकी सर्विसेज को बंद कर देता हूँ। अगर ये जो हमारे पास बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये चाहेंगे, हमारे पास टाइम होगा तो मैं इनको लिनक्स का इसी तरह जो इंस्टेंस है वो क्रिएट करके और उसमें सिक्योर शेल के ज़रिए उसमें कम्युनिकेशन करके उसमें चीज़ें इंस्टॉल करके डिप्लॉय करके भी दिखा दूंगा, लेकिन प्रॉब्ली शायद उसका हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, इस वजह से मैं दूसरी सर्विसेज के ऊपर आना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये आपके पास एक हमारे पास है फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन रिकग्निशन। एक ये इसमें कई सारी चीज़ें हैं। इसमें फॉर एग्जांपल एक चीज़ है जो कि बड़ी आसानी से आप भी टेस्ट कर सकते हैं, वो है सेलिब्रिटी रिकग्निशन। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये एक दो अपने ही, ये इनके ये मुस्तकबिल के सीईओ हैं अमेज़ॉन के, और ये हालिया सीईओ हैं जेफ बेज़ोस। तो इसकी इनकी बजाय अगर हम फॉर एग्जांपल मैंने एक जिना साहिब की कायद अज़म की मैंने डाउनलोड की हुई थी। तो ये देखें, इन्होंने इसने रिकग्निशन ने इसको खुद से डिटेक्ट कर लिया है कि ये तस्वीर जो है मोहम्मद अली जिना की है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कई सारी चीज़ें हैं, इमेज मॉडरेशन है, ऑब्जेक्ट के अंदर सीन डिटेक्शन है। फॉर एग्जांपल अब ये देखें, अगर मैं कोई इस तरह इमेज आपके सामने कोई इमेज डाउनलोड करके गूगल से इसको अपलोड करूंगा, तो ये उसमें ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि इसमें कार्स कितनी हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, व्हीकल्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मैं अगर इस दूसरी इमेज के ऊपर डिटेक्ट सेलेक्ट करूं इसको, तो आप ये देख सकते हैं, ये बता रही है कि ये इमेज एक सिटी का इमेज है, या ये टाउन है, अर्बन एरिया है, इसमें बिल्डिंग्स हैं, प्रॉबली ये मेट्रोपोलिस है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। मज़ीद अगर आप देखना चाहते हैं, स्काई है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी है। तो ये यानी आपके पास एक सर्विस है जो कि रेडीमेड आपकी कंप्यूटर विजन इमेज रिकग्निशन की कंप्लीट एक पैकेज किस्म की एप्लीकेशन है। अच्छा, इसको आप बड़ी आसानी से अपनी जो एप्लीकेशंस हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका सही तरीका ये है कि अगर आप प्रोग्रामेटिकली इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आप या तो अब जो आपका डिफरेंट डिप्लॉयमेंट आपके पास ऑप्शंस हैं, कंटेनर की ऑप्शन है, अपनी वर्चुअल मशीन की ऑप्शन है, जहाँ पर भी आपने अपना कोड डिप्लॉय किया हुआ है, आप अमेज़ॉन के एसडीके यूज़ करेंगे। एसडीके की मदद से इसकी एपीआई कॉल करेंगे, एपीआई के ज़रिए अपना इमेज इसके अंदर अपलोड करेंगे, और आपको इसी तरह की ये एक असल में जेसॉन फाइल है जिसको ये इस तरीके से दिखा रहा है। ये जेसॉन फाइल है, आप ये जेसॉन फाइल आपको मिल जाएगी और आप इस जेसॉन फाइल में से ये ऑब्जेक्ट्स को निकाल के, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को निकाल के यूज़र को दिखा सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो ये एक बड़ी आसान सी इजीली एक्सेसिबल एप्लीकेशन है। बाकी टैब्स मैं थोड़े से बंद कर दूं। अच्छा, इसके अलावा फिर आपके पास ये टेक्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप ये OCR की असल में सर्विस है, आपके पास कोई भी इमेज है तो ये उस इमेज में से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देगा, उसकी शक्ल वो हैंड रिटन टेक्स्ट है आप देख सकते हैं, तो ये तब भी सिलेक्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल अभी जो ये जो टॉक थी इसके लिए ये जो इमेज बनाया था, फ्लायर जो था, मैं अगर इसको अपलोड करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये इसको भी
इसके भी टेक्स्ट को प्रॉपरली सिलेक्ट कर लेगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये SPS को इसने सिलेक्ट कर लिया है, सेकंड मंथली मीटिंग को सिलेक्ट कर लिया, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप को, जितना भी टेक्स्ट है उसने किसी भी टेक्स्ट को मिस नहीं किया। और आप ये देख सकते हैं कि डिड हिज PhD फ्रॉम वियना यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द, आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नज़र नहीं आएगी। ठीक है, ये चंद एक चीज़ें हैं जो कि वो इस वजह से क्योंकि उसमें ईमेल एड्रेस का है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट परफेक्ट, यानी 98% इसकी परफेक्शन आपको नज़र आएगी, हालांकि ये सिंपल एक इमेज था। इसके अलावा आपके पास ये ट्रांसक्राइब है। ठीक है, इसमें आप वेव फाइल या आप कोई ऑडियो फाइल अपलोड करते हैं और ये उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। ट्रांसलेट है, जिस तरह गूगल ट्रांसलेटर है, डीप कंपोजर है। एक मज़े की चीज़ जो स्टूडेंट्स के लिए वो है डीप रेसर। मैं स्टूडेंट्स को ज़रूर मोटिवेट करूँगा कि वो इसको ज़रूर टेस्ट करें अगर वो अपना अकाउंट बनाते हैं। इसमें ये मैं इसको कंप्लीट इसके पाइपलाइन में तो नहीं जा सकता, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम दरकार होगा, लेकिन ये असल में एक कंपटीशन है जो कि AWS सारी दुनिया में करवाती है। ये वर्चुअल भी हो सकता है, यानी सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में भी हो सकता है, और ये आपका जो इसकी एक डीप रेसर कार है वो भी आपको मिल जाती है। अगर आप सर्च करें डीप रेसर तो ये कार है, ये जो हार्डवेयर है ये भी आपको मिल जाता है। इसको आप ये जो है इस तरह का एक आपके पास छोटा सा रनवे होता है, यानी वो आपके पास होता है कार का ट्रैक, उस ट्रैक के ऊपर आप इसकी बाकायदा इसका कंपटीशन होता है जिसमें लोग अपनी कार्स लेकर आते हैं, इसके ऊपर अपने एडिशनल पिगी पैक कंपोनेंट्स भी लगा सकते हैं, और इन कंपटीशन ये होता है कि कौन इस ट्रैक को जल्दी से जल्दी कवर करेगा विदाउट वायलेटिंग द बाउंड्रीज। ठीक है, तो इस लेकिन अगर आप ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान में तो ये डीप रेसर ये वाली जो डिवाइस है ये इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपको ये अवेलेबल नहीं भी है तो आप ये सारा काम, इसका जो मशीन लर्निंग वाला पोर्शन है ये आप वर्चुअल इन्वायरमेंट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है हाशिम आई शुड स्टॉप हियर, क्योंकि सर्विसेज तो आपके सामने है, इतनी ज़्यादा है कि घंटों दरकार है किसी भी एक सर्विस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, और अगर आपका कोई इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। जी श्योर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। एक्चुअली आई डू हैव अ क्वेश्चन। इसमें आई सी कि अ लॉट ऑफ सर्विसेज आर देयर। इज देयर अ सर्विस फॉर इमेज बेस्ड PDF, जैसे आपने टेक्स्ट ट्रैक बताया OCR की थी, तो कोई इमेज बेस्ड PDF के लिए भी होती है इसमें? यानी आप ये कह रहे हैं कि एक इमेज हो जो कि PDF की फॉर्म में हो और आप वो उसको अपलोड करें तो वो उसको उसका टेक्स्ट दे दे। जी 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 बिल्कुल, ये सर्विस ये काम कर देती है जो मैंने अभी आपको बताई, टेक्स्ट ट्रैक जो है। ठीक है। ऑलराइट, एनीवन एल्स, एनीबॉडी एल्स? सुमामा ने मेरा ख्याल है रेज किया है हैंड। मैं जी सुमामा। एक छोटा सा क्वेश्चन, ये बताइए, मैं जब ये बहुत एक तो बहुत अच्छी एक्सप्रेशन की मैं समझता हूँ, बहुत रियली आई एंजॉयड इट ना। अच्छा, इसमें ऐसा है कि अगर कोई डिपार्टमेंट ऐसा है कि जैसे मैं पुलिस की बात करूंगा कि वो एक अपनी एक सिस्टम कस्टमाइज करना चाहता है कि इन 5 क्रिमिनल्स से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है और उसकी बुनियाद पे वो कोई AI बेस्ड कोई चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, तो कोई ऐसी सर्विस होगी कि जो कलेक्टेड डाटा हो उसका फ्यूजन पॉसिबल हो। अच्छा भाई, यहाँ से ये है, यहाँ से ये, क्योंकि लिंक एनालिसिस में इसकी जरूरत पड़ती है कि ये गाड़ी यूज हुई, ये रूट यूज हुआ, ये हुआ, सीन ऑफ क्राइम से ये चीज देखी। तो इसमें कोई इसे अगर मैं कहूँ वैल्यू एडेड सर्विस कि जो ऑलरेडी सर्विस अवेलेबल है उन्हें एक पूल में डाल के एक वैल्यू एडेड सर्विस हो जो वो क्राइम को या वट जो भी होगा उसको फ्यूजन कर सके। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। इसके लिए एक इसका सोल्यूशन है जो कि ज़्यादा टेक्निकल एक्यूमेन रिक्वायर करता है, और एक सोल्यूशन है जो कि कोई ख़ास टेक्निकल एक्यूमेन यानी रिक्वायर नहीं करता। जो सिंपल सोल्यूशन है वो है इसको आप कहते हैं AWS SageMaker ऑटो पायलट।
ठीक है। मेन जो सर्विस है इसके लिए वो है AWS SageMaker, यानी आपकी जो मशीन लर्निंग से रिलेटेड या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो गेटवे है AWS का, वो SageMaker है, यानी आपने SageMaker से ही स्टार्ट करना है। अब SageMaker के अंदर एक ऑप्शन है ऑटो पायलट। उसमें आप क्या करते हैं कि आपके पास जो डाटा है, फॉर एग्जांपल आपके पास कार्स हैं, वो क्रिमिनल्स की कार्स हैं या उनकी वीडियोस हैं, उनकी पिक्चर्स हैं, ये सारा डाटा आप लेबल कर देते हैं कि ये एक आम शहरी की कार है, ये उसका नंबर है, ये एक क्रिमिनल पर्सन की कार है, या ये उसका चेहरा है, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें आप लेबल कर देते हैं, डाटा सेट क्रिएट कर देते हैं, और उसके बाद AWS SageMaker ऑटो पायलट को कहते हैं कि वो खुद ही इस डाटा को एनालाइज करे, खुद ही मॉडल सिलेक्ट करे, और मॉडल सिलेक्ट करने के बाद आपको एक इंटेलिजेंट कंपोनेंट रिटर्न कर दे। अब जब वो ये ऑटो पायलट खुद ब खुद करेगा सारा कुछ, और आपके पास जब वो कंपोनेंट आ जाएगा तो ऑल यू नीड टू डू इज, आपने बिल्कुल उस तरह का डाटा जिस तरह का इसको ट्रेनिंग के वक्त प्रोवाइड किया था वो डाटा प्रोवाइड करना है, और इसने आपको रिजल्ट रिटर्न कर देना है कि ये it looks like there is some suspicious activity around this video or image or not। ठीक है, तो वो आपको एक सर्टन प्रोबेबिलिटी के साथ रिटर्न कर देगा कि जी इसमें कोई सस्पिशन है या नहीं। तो दिस इज आल्सो पॉसिबल सर। सुमामा का क्वेश्चन था। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सुमामा ज़हीम है, और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट जो है उसके लिए क्या लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है AWS को लर्न करने के लिए? जैसे मतलब एक क्लाउड गुरु या यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं। अब AWS एजुकेट पे जैसे मैंने लॉगिन किया तो उसमें कुछ जो है वो क्लाउड के पुराने ट्यूटोरियल्स है, और हालांकि साल बाद क्लाउड चेंज हो जाता है। तो आप ऐसे क्या चीज़ें सजेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स को वहाँ जाके अपने आप से जो है वो लर्निंग करनी चाहिए? अच्छा सुमामा, वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई अप्रिशिएट योर वर्क फॉर AWS। ठीक है, मैं आपको जानता हूँ, माशाल्लाह आपने AWS की कम्युनिटी सेटअप की हुई है, ज़बरदस्त। अच्छा, इसके लर्निंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या है? लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ AWS एजुकेट का आप अकाउंट बनाएं, ठीक है। इसके बाद आप गूगल के ऊपर लिखें AWS स्टूडेंट बैजेस, ठीक है। मैं अगर स्क्रीन शेयर कर सकूँ दोबारा तो मैं आपको दोबारा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ AWS स्टूडेंट बैजेस, ठीक है। मैं ये करता रहता हूँ अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी मोटिवेट करता रहता हूँ, इस वजह से ये उसमें रिलेटेड हिस्ट्री में आ गया है। आपका काम ये है कि आप सबसे पहले आप इन स्टूडेंट बैजेस को वन बाय वन एक्सप्लोर करना शुरू करें और इनको अर्न करना शुरू करें। स्टूडेंट बैज का सिलसिला जैसे ही आप चलाते हैं, आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास बैजेस कौन कौन से हैं? ये स्टार्टअप बैज है, आप चाहें तो ये शुरू कर लें, लेकिन ये बिल्कुल ही बेसिक है, ठीक है। जो मज़े की चीज़ें हैं वो हैं जैसे ही आपका अमेज़ॉन हनी कोड है, ठीक है, यानी इसमें आपने ये जो डेवलपमेंट की पूरी स्ट्रीम है उसके अंदर जाना है। डीप लेंस है, ये उन लोगों के लिए जो कि मशीन लर्निंग और स्पेसिफिकली कंप्यूटर विजन से रिलेटेड चीज़ों को फोकस करना चाहते हैं। डीप रेसर है जिसका मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, जब भी आप ये काफ़ी सारे आपके पास बैजेस हैं, इनको आप एक्सप्लोर करें। IoT बैज भी है, ठीक है, इनको आप एक्सप्लोर करें। आपको जब जैसे ही आप किसी बैच को सिलेक्ट करते हैं तो आपका वो जो लर्निंग पाथ है वो AWS ऑटोमेटिकली आपको खुद ही बता देता है कि जी आपने इस बैच को हासिल करने के लिए कौन सा ट्यूटोरियल लेना है, उसके बाद कौन सी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। जैसे जैसे आप वो ट्यूटोरियल लेते चले जाते हैं, अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करते चले जाते हैं, तो आपको ये बैच मिल जाता है, और आप इस बैच को इवन अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल पे, अपने फेसबुक के प्रोफाइल के ऊपर आप डिमॉन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं, अपने CV के ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू शुड टेक। ठीक है सर। There is a question from Imran Barki. How to join a classroom on AWS Educate? जी इमरान बरकी, आप के साथ मेरी ईमेल पे भी बात हुई थी,
और आप पिछली मेरी प्रेजेंटेशन में भी मौजूद थे। मैंने आपको कहा था कि आप लोग अगर कोई तकरीबन 8-10 लोगों का ग्रुप अगर मुझे अपने ईमेल एड्रेसेस सेंड कर देते हैं तो मैं स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए एक AWS एजुकेट का क्लासरूम क्रिएट कर दूंगा, जिसके अंदर तकरीबन $50 का बैलेंस भी होगा और उसमें आप जो चाहें कर सकते हैं। इसकी मैंने वो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं एजुकेट वाले, मैंने उनसे इसकी इजाज़त भी ले ली है। उन्होंने उनको मैंने बता दिया था। इसमें सिर्फ एक डाउन साइड है कि अगर आप कल को स्टूडेंट एम्बेसडर बनते हैं तो आपकी एफिलिएशन जो उनके पास शो होगी वो फास्ट की शो होगी, ना कि आपके इदारे की। ठीक है, तो ये सिर्फ इसकी एक डाउन साइड है। अदरवाइज आपको टोटल एक्सेस इसकी मिल सकती है। वो मैंने आपको कहा था कि आप वो मुझे जो है, लेकिन ये आप देखें कि आप थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, उन लोगों के ईमेल एड्रेसेस मुझे दें जिनके बारे में आप यू आर 100% श्योर कि they will not abuse it, they will only utilize it and use this opportunity to learn something rather than exploiting it. ठीक है, तो you can do this. सुमामा Okay. का एक और क्वेश्चन। सर मेरा जी। क्वेश्चन भी है और फीडबैक भी है। मैं AWS का स्टूडेंट एम्बेसडर रह चुका हूँ पिछले साल 16 एम्बेसडर से पाकिस्तान से और 326 ऑल अराउंड दी वर्ल्ड। तो हम एम्बेसडर्स उस वक्त समझ लें कुछ भी हमें नहीं पता था कि ये क्या सिनेरियो, इवन मतलब आपसे भी अभी हमारा 1-2 हफ्ते पहले ही रब्ता हुआ है। तो हमें ये इशू आया था कि हम ना स्टूडेंट एम्बेसडर नहीं बन पा रहे थे, तो वो भी इत्तेफाक से मुझे भी जो है ना एक कंपनी के थ्रू ही बने थे, प्रीमियम पार्टनर थे। तो सर इस तरह कोई AWS से हम पूरा साल ये कहते रहे कि स्टूडेंट्स जो है ना वो AWS एजुकेट पे लॉगिन नहीं हो पा रहे, जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएटेड नहीं, उनके लिए कुछ किया जाए। तो सर काइंडली अगर आप इस चीज़ पे थोड़ा वर्क कर लें AWS के ऑफिशियल टीम से कि वो स्टूडेंट्स कर पाएँ और उनको जो क्रेडिट्स मिल पाए, क्योंकि इस दफ़ा एम्बेसडर का कोहॉर्ट भी ओपन होना है और स्टूडेंट्स वैसे ही एलिजिबल नहीं होते हैं। जी, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें थोड़ी सख्त बातें आ जाएंगी, तो पहले से माजरत। इशू ये है कि AWS वाले जो हैं वो तो तैयार बैठे हैं। अगर लोग सर्टिफिकेशन करने आते हैं, बैजेस विन करने आते हैं, वो तो तैयार बैठे हैं बैलेंस देने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माइंडसेट की, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अरशद और ये जो स्पिन लैब्स वाले हैं, हाशिम मलिक हैं, हाशिम हैं, इनका शुक्रगुजार हूँ कि दे आर ब्रेकिंग द आइस। मैं जिस यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ probably considered the top university of computer science in Pakistan, लेकिन still I face a lot of friction। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग अभी उस तरीके से माइंडसेट प्रिपेयर नहीं हुआ, उन्होंने अभी क्लाउड को एक्सेप्ट नहीं किया, इसकी इम्पोर्टेंस को एनालाइज नहीं किया, रियलाइज़ नहीं किया बल्कि कहना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है। जैसे जैसे ये आइस ब्रेक होती चली जाएगी, क्लाउड की अडॉप्शन ज़्यादा होती चली जाएगी, तो AWS वाले पाकिस्तान में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना भी शुरू कर देंगे। प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ये 2 वे ट्रैफिक है, ये 1 वे नहीं हो सकती। ठीक है, यानी मैं अगर किसी यूनिवर्सिटी को भी कहता हूँ कि जी मैं आपको आकर बताने को तैयार हूँ कि आप किस तरीके से AWS के क्रेडिट्स अवेल कर सकते हैं, तो दे स्टार्टिंग स्क्रैचिंग देयर हेड्स के पता नहीं इस बंदे का क्या फ़ायदा है। ठीक है, नाउ यानी मैं उस साइड्स पे नहीं जाना चाह रहा, लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स हैं ये। ठीक है, फिर आपको लोकली भी आपको काफ़ी फ्रिक्शन आती है कि जी वो तो कंपटीटर्स हैं वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें जो हैं हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है, और ये आप लोग स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हम लोग आपको जिस तरह मैं इस तरह की एक टॉक आपको दे सकता हूँ, आपको जो टेक्निकल चैलेंजेस आते हैं, जैसे अगर आपको AWS लैम्बडा की समझ नहीं आ रही, आपको फारगेट की समझ नहीं आ रही, कुबरनेटीज की समझ नहीं आ रही, मैं आपको एक्सप्लोर करके ये बता सकता हूँ, लेकिन मैं लोगों के पास जाके, स्टूडेंट्स के पास जाके उनको मोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो आप लोग जो काम कर रहे हैं वेरी गुड, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप स्टूडेंट एम्बेसडर्स को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आ रहे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ठीक है, और सबसे पहला जो काम है ना वो आपने ये करना है कि अपनी यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट को कायल करना है कि आप अक्रेडिटेड AWS यूनिवर्सिटी बने, और उसमें कुछ भी आपका नहीं जाता, सिर्फ मैनेजमेंट ने एक फॉर्म फिल करना है,
आप मेरा ख्याल है यूईटी से हैं, यूईटी तो ऑलरेडी जी सर। शायद एक्रेडिटेड होगी, नहीं है तो यूईटी को एक्रेडिट होने में मेरा ख्याल है 1 वीक भी नहीं लगेगा। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी की एक्रेडिटेशन में 1 वीक भी शायद नहीं लगेगा। तो ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके पास यानी इतनी बड़ी फैकल्टी है, पीएचडीज हैं, इनको अपनी एक्रेडिटेशन लेने में चंद दिन लगेंगे लिटरली, लेकिन दे आर नॉट डूइंग दिस, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, दिस इज अ, तो ये जो बैरियर है ना, ये माइंडसेट का है, ये अमेजोन वालों की तरफ से कोई खास बैरियर नहीं है। ठीक है, उनको सिर्फ ये अश्योरिटी चाहिए कि अगर हम ये रिसोर्सेज जो है वो करेंगे, आपको देंगे, तो उन रिसोर्सेज को अब्यूज नहीं किया जाएगा, उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा। ठीक है, दिस इज द ओनली थिंग दे वांट। ठीक है, ठीक है सर, इसका एक राउंड वे हमने ये निकाला था स्टूडेंट्स ने ना, हम 4-5 ईमेल से अप्लाई करते थे तो रैंडमली किसी एक ईमेल से वो सिलेक्ट हो जाता था, स्टूडेंट फिर AWS एजुकेट रजिस्टर हो जाते थे इस तरह। नहीं, इसकी यकीन करें, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब देखें, मैं सिर्फ मैं AWS का फैकल्टी एम्बेसडर हूँ, तो ये एम्बेसडर इज फैकल्टी लेवल पे ये हाईएस्ट होता है। ठीक है, जी सर। इससे निचले भी लेवल्स हैं। एक आम फैकल्टी का मेंबर AWS की फैकल्टी मेंबरशिप ले सकता है, उसमें 1 वीक का टाइम लगता है मैक्सिमम। आप ईमेल का, आप AWS एजुकेट पे जाते हैं, एक फॉर्म फिल करते हैं, आपको रिस्पॉन्स आ जाता है, दैट्स इट। ठीक है, तो कोई भी फैकल्टी मेंबर उसका पार्ट बन सकता है। जो फैकल्टी मेंबर पार्ट बन जाता है वो 150 स्टूडेंट्स को अकाउंट क्रिएट करके दे सकता है, 150 स्टूडेंट्स, दिस इज अ लॉट। ठीक है, तो देखिए AWS के जो उनका जो सारा सेटअप है, उसका एक तरीका है, और उस तरीके में आप आए, कोई इशू ही नहीं है। यानी एक यूनिवर्सिटी के लिए 400-500 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करना तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है माइंडसेट की, हम वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे। असल में उस डॉक्टर उस्मान, आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारा जनरल एटीट्यूड लेड बैक होता है, जब तक सर पे नहीं पड़ती है हम वो चीज़ें करना नहीं शुरू करते हैं। और चूंकि यूनिवर्सिटीज़ में इतना वो पुश का माहौल नहीं होता है, वेयर पीपल नीड टू either connect with the industry or excel themselves, तो इस वजह से वो नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो हम फोरम्स क्रिएट कर रहे हैं, जब इसके थ्रू अवेयरनेस जनरेट होगी, स्टूडेंट्स भी डिमांड करेंगे, कुछ एक्सपर्टीज भी डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, तो उससे फिर इंडस्ट्री भी पुल होना शुरू हो जाती है। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ टू वे सिचुएशन। अगर आपके पास एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं है तो लोग उसको अडॉप्ट करने में हेजिटेट होते हैं, और जब इंडस्ट्री में पुल नहीं है तो ना ही यूनिवर्सिटियां उस तरफ देख रही होती हैं, ना ही लोग उस तरफ देख रहे होते हैं। सो इट इज लिटिल ट्रिकी सिचुएशन। जी सर, एक चीज इसमें ऐड कर दूं जो डॉक्टर चीमा ने पिछली प्रेजेंटेशन में कही थी, बिल्कुल, कि ये HEC को भी अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। HEC इज टू मच बॉग डाउन अपॉन द जर्नल पब्लिकेशंस। और इसके अलावा अगर कोई बंदा जो है ना, यानी आसमान से सितारे भी अगर तोड़ के ले आएगा ना, तो वो कहेंगे इसका क्या फायदा, आपने जर्नल पब्लिकेशन कितनी की है। तो ये माइंडसेट फैकल्टी को बहुत ज्यादा कैद करके रख रहा है, लिहाजा इसको भी मेरे ख्याल से चेंज होना चाहिए। बिल्कुल 100% एग्री विद इट। इसमें काफी काम भी हुआ है, लेकिन अगेन देयर आर मेनी पॉलिटिकल एलिमेंट्स। जो यूनिवर्सिटियों की अपनी पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल पॉलिटिक्स की नहीं बात कर रहा। एनीवे, आई थिंक वी शैल मूव फॉरवर्ड, बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी वैल्यूएबल नॉलेज इनपुट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी जी हर्ष। Hashim, I wanted to make a comment. I know we are 5 minutes past the hour. Usman, I think that your presentation was one of the best on cloud that I've heard in a very long time. और आपने इतनी एलिगेंस और सिंप्लिसिटी के साथ, वो आइंस्टाइन कहना कि आपको जो सब्जेक्ट जितनी अच्छी तरह आता हो आप उसको उतना एलिगेंटली प्रेजेंट कर सकते हो,
So your presentation was just that, and I was taking notes, and I have so many good notes, starting from even the way you आपने वो शुरू की अपनी conversation and everything else. So I'm so thrilled, Hashim. My recommendation to you is that this recording should be sent to all your members and say that this is a must. This is something that they must watch. I know आजकल रमजान की वजह से attendance is low. Some people just say कि 4 बजे के बाद हम काम नहीं करेंगे. But I think this was outstanding, and Usman, I would love to connect with you offline also someday. So thank you so much. This was like I said, this was outstanding. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you for the appreciation. Thank you, Ash. Jafar sir, your mic is on mute. If you're जस्ट उस्मान यकीन करे बहुत मजा आया. मैं बिल्कुल रिपीट करूंगा कि बिल्कुल बहुत अरसे के बाद क्लाउड के ऊपर इतने सिंपल अल्फाज में इतनी क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी. लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो अभी मैं नहीं कर सका था, टाइम कम था, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपसे मुलाकात भी रहे. डॉक्टर अशरफ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के जो सेशंस है ना, ये मैं इसी डिफरेंट लेवल्स चाहूंगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं ये जब उस्मान साहब बोल रहे थे, मैं सोच रहा था कि इसमें कुछ ऐसे एक्सपर्ट बिठाए जाएं जो यूज केसेस दें लोगों को, और वो यूज केसेस स्टूडेंट डेवलप करें. मैं थोड़ा सा लॉ एनफोर्समेंट, पुलिस, इनके हवाले से सोच रहा था. तो मैं डॉक्टर अशरफ आपसे इस पर बात करना चाहूंगा. हाशिम, आपसे बात करना चाहूंगा कि ईद के बाद इंशाल्लाह बैठ के इदारों के कस्टमाइज सॉल्यूशंस इसके ऊपर, और अगर हम स्टूडेंट्स को तैयार करेंगे तो हम फ्यूचर जॉब मार्केट के बच्चे तैयार कर रहे हैं. अब यकीन करें, मेरा चूंकि उनसे रब्ता है इदारों से, ये उनकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है. ऑर्गेनाइज क्राइम्स के लोगों को ट्रैक करने के लिए उनकी मालूमात अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर. और अभी इसके अंदर जो हमारा अनस्टोर्ड डाटा है, जो मैनुअल डॉक्यूमेंट की सूरत में पड़ा है, वो बहुत बड़ी वैल्यू है. जो ये बता रहे थे, उसकी बात कर सकते हैं. उस्मान, वाकई रियली कमेंडेबल, और मैं भी तुम्हारे से जरूर मिलना चाहूंगा. बहुत शुक्रिया. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Jafar Sahab. Thank you, Dr. Usman Awais again. Uh, the next session on cloud, we are planning to have a deep dive into one of the two technology providers, either Azure from Microsoft or deep dive from an IBM developer advocate on IBM Cloud. So stay tuned. Keep checking your emails. We'll also be posting on our social media. The next week, immediate session that is going to be on IoT. So stay tuned for that as well. With this, we can close this session. Thank you very much, everyone. I'll be sharing the recordings. Have a good evening and a good afternoon.